Welcome back to my YouTube channel. Do subscribe, like, and don't forget to share my videos. So our today's topic is conditional statement in Java. So the conditional statement help us to execute the code with the condition that if it returns true, then some code of line will be executed, and if the condition returns false, then other code will be executed. So in Java, the conditional statement are of 3 to 4 types. The if statement is one type, the else statement is another type, the else if statement is of another type, and the last and one which is the most difficult is nested if else statement. So we will discuss them briefly one by one with the syntax and example. So guys, let's start. The first statement is the if statement. if statement है कि इसके लिए हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, या तो कंडीशन ट्रू होगी तो लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, या कोई भी अगर कोई फॉल्स होगी तो मतलब कुछ भी नहीं होगा, मतलब कुछ नहीं है हमारे पास, यदि है तो है या तो नहीं. द अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डेफिनेशन, यूज द इफ स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ जावा कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ अ कंडीशन इज ट्रू. And the syntax of the if statement is if, then bracket start, and in that we have to write the condition, and the curly braces starts, and between the curly braces we have to write the code. curly braces लगाना ज़रूरी नहीं है. अगर हमें एक लाइन का कोड एग्जीक्यूट करना है तो curly braces ज़रूरी नहीं है. अगर मोर देन वन लाइन हमें एग्जीक्यूट कराना है कोड को तो curly braces मस्ट हैं, मतलब कंपलसरी हैं, वरना हमारा एक ही लाइन का एग्जीक्यूट होकर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा और दूसरा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा. सो लेट्स बिगिन विद द एग्जांपल नाउ. सो एग्जांपल इज़ ऑफ, हमें एक नंबर इनपुट कराना है यूज़र से और हमें उसको बताना है वो 0 है या नहीं है. सो वी विल यूज़ इफ़ इन दिस. तो इंट एक्स इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट numtf dot get text. This line indicates the location of the number which will be getting input from the user. Then the if keyword, bracket starts, round brackets, in which we will write the condition if x equal to 0. then हमें एक ही लाइन का एग्जीक्यूट कराना तो हम करली ब्रेसेस नहीं लगाएंगे, या लगा भी सकते हैं, लेकिन अगर एक लाइन से फालतू एग्जीक्यूट कराना तो मस्ट है लगाना, कंपलसरी है लगाना. लेकिन अब हमें एक ही लाइन का एग्जीक्यूट कर रहे हैं इसलिए हम नहीं लगा रहे हैं. सो रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट कर लीजिए, ये नंबर एंटर्ड इज 0. So this is the example of it. No error is coming. So basically this is the keyword if keyword, and this round brackets to round bracket is the condition which will return it 0, true or false in the 1 or 0 language, computer language, and this is the code which we want to execute. And bracket is not necessary for one line of code to be executed, and if we want to execute more than one line code, then curly braces is must, compulsory. Then our next conditional statement is the else statement. Use the else statement to specify a block of code to be executed if the condition is false. इसका मतलब है कि अगर हमारा if का कंडीशन अगर false आ जाता है तो जो false का अल्टरनेटिव है जो कि else है वो कोड लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी. इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है. इफ़ वाली लाइन बिल्कुल सेम लिखेंगे, उसका सब कुछ सेम है, लेकिन इफ़ के बाद हम एल्स लगा देंगे, स्मॉल ई स्मॉल एल स्मॉल एस स्मॉल ई, देन करली ब्रेसिस, एंड देन वी हैव टू राइट द लाइन टू बी एग्जीक्यूटेड बिटवीन देम. And next the note, the else is all letters are small in this. If we write one of the letter capital, then there will be an error. Then execute the if condition first. Execute. We are executing the if program first. We have to write 0, press number entered is 0,
and because there is no else, we have there is no else statement, just write another number 0, then there will be an error. You can see there is no working of a, because there is no else, because we have only added the 0 number, so 0 working and 1 is not working. Then we use the else statement here, use the else, result tf dot set text bracket start, ये number is not 0. Then we will execute this also, F6, and here we will write 0 for the testing of if condition. 0 entered, and in the previous code when we all not applied the else, there is no output, but now there will be an output. The number is not 0, the output, because if condition has returned false and the else condition is executed, which is number is not 0, so number is not 0. Then the next type of statement, conditional statement, is the else if statement. इसके अंदर होगा कि हमारे पास मल्टी कंडीशन हम कर सकते हैं, जैसे कि इफ़ ने फॉल्स दे दिया तो हम अगला स्टेटमेंट लगाएंगे जो एल्स इफ से स्टार्ट होगा, उसने फॉल्स दे दिया तो हम फिर से एल्स इफ लगा सकते हैं, उसने फॉल्स दे दिया तो लास्ट में हम एल्स लगा के छोड़ेंगे. तो इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से है. इफ़ स्टेटमेंट लिखेंगे बिल्कुल सेम टू सेम जैसे ऊपर लिखा, फिर हम एल्स इफ लगा देंगे, कंडीशन 2 डालेंगे, मतलब इसके अंदर मल्टी कंडीशन टेस्ट कर सकते हैं. तो एल्स इफ डाला, फिर उसका कंडीशन लिखा, फिर हम और भी एल्स इफ डाल सकते हैं, और जितनी चाहिए उतनी एल्स इफ डाल सकते हैं, और लास्ट में एल्स लगा के ख़त्म कर देना कंडीशन को एल्स इफ की. लेट्स ट्राई फ्रॉम दिस कि हमें नंबर एंटर कराना है, हमें बताना है 0 है, 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है. सो हम इसको कर लेते हैं 0 हो गया. यहाँ पर एल्स इफ लगा के कंडीशन डाल देते हैं, एल्स इफ कंडीशन डाल देंगे कि अगर हमारा नंबर 0 से छोटा हुआ तो 0 से छोटा हुआ तो नंबर इज स्मॉलर देन 0. और एल्स में हम डाल देंगे जो कि डिफ़ॉल्ट होगा हमारा result tf डॉट सेट टेक्स्ट नंबर इज ग्रेटर than 0. सेमीकोलन. सो ये हमारा हो गया. एल्स इफ के साथ भी हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि अब हमने 3 कंडीशन टेस्ट कर लिए हैं, 3 से फालतू भी कर सकते हैं एल्स इफ को यूज़ करके. लेट्स पहले हम 0 डालते हैं, द नंबर इज़ 0, यू कैन सी आउटपुट. इफ हम डालते हैं 1 डालते हैं, द नंबर इज़ स्मॉलर देन 0, देयर इज़ एन एरर, जस्ट वेट, स्मॉलर देन 0, द नंबर इज स्मॉलर देन 0. एल्स में हमने डाल दिया नंबर इज ग्रेटर देन 0. सो गाइज बेसिकली जो हमारा एरर था वो यहाँ पर था, हमने कि ऑपरेटर गलत यूज़ कर दिया था. ऑपरेटर हमें स्मॉलर देन का 0 का यूज़ करना था. और अब हम इसको रन करके देखते हैं, अब शायद सही देगा. 0 नंबर एंटर्ड इज 0, यू कैन सी आउटपुट, एंड देन वी एंटर 1, नंबर एंटर इज ग्रेटर देन 0, देन 6 7 77, the number is entered greater than 0, and we write some negative number smaller than 0 is negative of 9, the number negative of 9 smaller than 0, the number is smaller than 0. So basically this is the last of conditional statement, which is the nested if else statement, which is most difficult statement. इसके अंदर जो होता है हमारा if के अंदर if यूज़ करते हैं, else के अंदर else यूज़ करते हैं. नेस्टिंग हो जाती है कि when an if statement is present inside the body of another if or else, then the statement is called nested if else statement. इसका मतलब है कि if के अंदर if यूज़ कर रहे हैं, else के अंदर else यूज़ कर रहे हैं. नेस्टिंग
मकड़ी का जाड़ा टाइप का, मतलब। सो गाइज हम नेस्टेड इफ एल्स को एग्जीक्यूट करके देखते हैं जावा के अंदर। सो ओपन द जावा, ये हो गया। सो मैंने एक इसके अंदर नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ कर रखा है, आप देख सकते हैं। ये नेस्टेड इफ एल्स, ये हमारा पहला कीवर्ड हो गया इफ़, इसके आगे हमने कंडीशन 1 डाल दी, देन ब्रैकेट स्टार्ट फ्रॉम देयर, एंड देन इफ़ के अंदर इफ़ हो गया, आप देख सकते हैं इफ़ के अंदर इफ़ है। यहाँ पर हमने फिर कंडीशन डाली, देन यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगाना जरूरी था क्योंकि हमने 3 लाइन का एग्जीक्यूट कराना है कोड, एंड देन उसके बाद हमने एल्स का यूज़ किया है, और फिर हमने फिर ब्रैकेट लगाया क्योंकि 3 लाइन का एग्जीक्यूट होगा, और फिर एल्स फिर यूज़ किया है। तो ये देख सकते हैं आप, इफ़ के अंदर इफ़ है, ये हो गया इफ़, यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट है, तो इफ़ के अंदर इफ़ हो गया, फिर एल्स के अंदर एल्स हो गया, देख सकते हैं आप। और अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखिए, ये हमने, आपको समझ में नहीं आएगा अभी, तो ये हमने लगा रखा है। इस कोड का मतलब है कि जैसे हम एक बटन को एक बार ही प्रेस कर सकते हैं, एक बटन को दूसरी बार प्रेस करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आएगा कि दिस रिजल्ट हैज़ ऑलरेडी बी यूज्ड। तो ये दिखा दिया है इसने। ये देखिए, एक बार प्रेस किया बटन को, दूसरी बार करेंगे तो हमें दिखाएगा दिस बटन इज़ ऑलरेडी यूज्ड। सो thank you guys for watching my video. Don't forget to share, like my video, do subscribe my channel, and meet you soon with the next video on the Java topic.